Okay, so very good afternoon, good morning to everyone. So we will start the today's session. Before starting the next topic, few student having some doubt in last lecture, right? So first we will clear the all the doubts. Am I audible? Okay, so uh, those who have the any doubt, just first raise your hand. So one by one we can clear their doubts, and we will then go for the next topic. Yes, you can start. I think Dhanashri having some doubt in last lecture, right? And then Dhanashri is there. Okay, so we will start with the next topic. I think Dhanashri is not yet joined and nobody is raising their hands. Okay. So we last lecture we are on this side, that is the phase 4, that is clinical trials involving medicinal professional of both modern and traditional therapies are done. ठीक है, इसमें हम लोग ने क्या देखा था कि the way we are performing the clinical trials for modern medicine, same way we has to perform the clinical trials for your um, ट्रेडिशनल मेडिसिन। सो जो उसका एफिकेसी है वो हम लोग प्रूव कर सकते हैं। मतलब हम लोग को पता है ट्रेडिशनल की हल्दी या फिर अड़ुलसा या फिर जिंजर जो कि वो डे टू डे बेसिस पे या फिर होममेड रेसिपी में भी हम लोग कफ सिरप या फिर कफ के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं, लेकिन we don't have any proper written proof apart from traditional history. So by performing the analysis on the instrument as well as animal study, preclinical studies, animal study, and then clinical trials, we actually prove the yes, these are the some traditional medicines or herbal or some herbs which having these particular phytochemicals, which is they're having this particular chemical formula and this particular structural compound or chemical compound having act on this particular organ. These are their action of mechanism which is we are perform with the pharmacological studies, and then we prove that ki along with the treating with these people in the clinical trials, we actually prove that these medicines having the active and same therapeutic effect as like a modern medicines. Okay, so this is give the some commercial and professionalization for your traditional medicines. So here we completed our all the four phases in your steps involved in traditional standardization of ASU. ठीक है, so अभी हम लोग को आगे देखना है कि जब when we are doing actually standardization, so what is the protocol, what are the in little bit detail the each step we will see. So your next topic in your syllabus, that is the what are the bioanalytical tools we are using for your ASU system. That means जब भी हम लोग standardization करते हैं, so during the standardization we have to perform number of test assay or a number of other positive control or quality control test. Okay, so for performing the test, what are the analytical or bioanalytical tools or instrument we are using for this analysis purpose? That is our next topic. Okay, so we will start with the next topic. Up till now anybody is having any doubt? Dhanashri has joined, or I think Kajal is also having the doubt in last lecture. If they are joined, just raise your hand so I can clear your doubts and go for the next topic. Otherwise, I will continue for your next topic. I will wait for 2 3 seconds. Nobody is raising their hand, so TK, we will continue for the next topic. Are you listening me? At least write in chat box something. I don't understand ki hello. Just write in chat box if you are listen to me. Yes or something. No, jo bhi hai. Okay. So we will continue for the next. Okay. So nobody is having any doubt. So we will continue for the next session. So I will share my screen once again for your next PPT.
The screen is visible. That is your next PPT. Yes, ma'am, it's visible. Yes, ma'am. Okay, okay. Thank you so much. Okay, so we will start. Okay, so this particular topic is not that much difficult like the previous topic, because previous topic we have to understand the methodology or what are the phases. Like in the various bioanalytical tools used in ASU, it is a very simple topic because first year में तुम लोग ने lots of bioanalytical instrumentation use किया. That is, you have complete paper thesis completely on bioanalytical instrumentation. जो तो सारे instrument तुम लोग ने deeply analyze किए हैं या फिर study किए हैं. सो दिस लेक्चर में हम लोग को क्या देखना है कि वी जस्ट फाइंड आउट कि हाउ दिस द एप्लीकेशन ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंटेशन इन एएसयू एनालिसिस, कि कैसे हर एक इंस्ट्रूमेंट एएसयू एनालिसिस के लिए यूज होता है. सो वी विल आई विल गो लिटिल बिट फास्ट फॉर दिस स्लाइड बिकॉज इसके अंदर ज्यादा कुछ एक्सप्लेन कैसे या फिर कंसेप्ट वाइज या फिर ऐसे कुछ टॉपिक नहीं, इट इज जस्ट थ्योरेटिकल. सो I will read the slides, and if I feel ki is there anything to explain or you have any doubts, and you can raise your hand for that particular point. Okay, so we will move for your next slide. I'm not making on it is like a full screen, because after doing the full screen the slide is not moving for the next slide. Okay, so this I will keep it as it is. So what are the different techniques we are generally using for analytical tools में? So techniques are basically divided into three sections, that is chromatographic techniques, non-chromatographic techniques and spectroscopic methods. Okay, so we will see one by one. So what are the chromatographic techniques? Definitely you are known very well कि there are lots of chromatographic techniques. Basically उसमें से तीन जो है जो materially हम लोग use करते हैं. So these methods are widely used in identify the characterization and quantitative analysis of various phytochemicals present in your herbal raw material and their formulations. So there are three techniques which are majorly using, that is HPTLC or TLC. Okay, maximally people are using TLC because everybody don't have the HPTLC, but HPTLC is more advanced than TLC, as you know better way, because we have already visited in Ancrom lab to find out the how the HPTLC is more advanced way than TLC. Okay, then HPLC, that is a high performance liquid chromatography. Next is your gas chromatography and hyphenated techniques in LCMS and GCMS. MS is not yet clearly taught to you, but I hope you have the basic idea about the mass spectrometry. Otherwise, we will see little bit detail in that particular topic in during that particular slide. So we'll move for the next slide. Okay, that is TLC or HPTLC. So it is the one of the earliest and most widely used method for initial screening to separate, detect and identify various phytochemical with semi-quantitative evaluation from the extract of herbal raw material and their formulations. So majorly TLC कहाँ पे यूज होता है? इनिशियल स्क्रीनिंग सिंपल है. अगर तुम लोग को उस प्लांट के अंदर कौन से फाइटोकेमिकल्स प्रेजेंट है देखना है, तो टीएलसी से सबसे बेस्ट टेक्निक कोई भी नहीं है. जस्ट डू द टीएलसी and you will easily get the what are the different kind of phytochemicals with the different color of bands with the marker picks. Okay, so this is the best technique to first screening of your compound, then identification of that particular phytochemical and semi quantitative ऐसे. Identification मतलब हम लोग को find out करना है टिनॉन प्रेजेंट है, अल्कलॉइड प्रेजेंट है, या फिर जो भी तुम लोग के फाइटोकेमिकल्स के अलग अलग ग्रुप्स है, बाबा अल्कोलॉइड प्रेजेंट है, टैनिन प्रेजेंट है या फिर स्टीरॉइड प्रेजेंट है, ये सब फाइंड आउट करना है. तो सबसे बेस्ट है, सबसे पहले टीएलसी करो. अगर प्रेजेंट है तो डेरिवेटाइजेशन से तुम लोग को वो पर्टिकुलर कलर का बैंड मिलेगा. देन यू कैन गो फॉर मोर डिटेल कि ये अल्कोलॉइड के अंदर हम लोग को ब्लैंड ऑरेंज कलर का बैंड मिल रहा है विच इज मैच विद द स्टैंडर्ड, मतलब कुछ तो अल्कोलॉइड प्रेजेंट है. फिर कौन से ग्रुप ऑफ अल्कोलॉइड प्रेजेंट है वो आप बाद में उसका फिर टीएलसी करके उसका डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोबाइल पेज यूज करके यू कैन इजीली फाइंड आउट. तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप ड्यूरिंग द एनालिसिस के अंदर हम लोग यूज करते हैं, दैट इज टीएलसी. ठीक है, as this technique is quite sensitive and reproducible, it is used to obtain the chemical fingerprinting of the plant extract, and it is convenient method for determine the quality and possible adulteration in the plant product. कैसे फाइंड आउट करोगे अडल्ट्रेशन? सिंपल है, जो भी तुम लोग का प्लांट मटेरियल है उसको तुम लोग रन करोगे. ठीक है, उसके एक स्पेसिफिक बैंड का पैटर्न मिलेगा. बैंड का पैटर्न के लिए रेफरेंस मटेरियल कहाँ से लोगे? हर्बल फार्माकोपिया से. Suppose you are getting something additional extra band, that means something additional powder is mixed with your compound which is showing the band, that particular band is not matching with your original pattern of the band. Okay, that is the
केमिकल फिंगरप्रिंटिंग और फाइंड आउट द मार्कर पिक, जिससे हम लोग को प्लांट के अंदर कुछ भी अडल्ट्रेशन हुआ है तो वी कैन इजीली फाइंड आउट। बिकॉज कुछ अलग प्लांट अगर मिक्स किया है तो कुछ अलग प्लांट का कुछ उसके स्पेसिफिक मार्कर्स पिक्स रहेंगे जो तुम्हारे नॉर्मल बैंड के पैटर्न में अवेलेबल नहीं रहेंगे। सो यू कैन इजीली डिटेक्ट दैट अडल्ट्रेशन इन योर प्लांट। ठीक है, with the help of advanced HPTLC, now it is possible to quantitate and find a percentage assay for particular phytochemical like HPLC। ठीक है, बिफोर द HPTLC हम लोग TLC ओनली इनिशियल स्क्रीनिंग या फिर केमिकल फिंगरप्रिंटिंग के लिए यूज करते थे, या फिर इसको सेमी क्वांटिटिव मेथड बोलते थे। वाई सेमी क्वांटिटिव? बिकॉज बैंड का जो ब्रॉडनेस है उससे हम लोग को पता चलता था कि कॉन्सेंट्रेशन कंपेयर टू स्टैंडर्ड हाई है या फिर लो है, लेकिन एग्जैक्ट कॉन्सेंट्रेशन कितना है वो TLC से पता नहीं चलता था। But with the help of HPTLC we can perform the assay percentage as a like HPTLC। मतलब HPTLC जितना ही सेंसिटिव अभी HPTLC HPLC जितना ही सेंसिटिव अपन HPTLC से भी ऐसे कर पाते हैं, एंड वी कैन इजीली फाइंड आउट द हाउ मच परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर फाइटोकेमिकल present in that particular sample. In fact, I can feel that HPTLC is more better than HPLC, because in HPTLC at the same time you can find out the assay of different marker peaks। मतलब 10 बैंड है तो सारे 10 के 10 बैंड के परसेंटेज ऑफ ऐसे तुम लोग को सिंबल सिंगल प्लेट में ही मिलेंगे। अगर HPLC से करना, इट इज मोर डेफिनेटली इट इज मोर सेंसिटिव देन द HPLC, बट हर एक के लिए तुम लोग को डिफरेंट बैच या फिर डिफरेंट एनालिसिस या फिर एक्सपेरिमेंट लगाना पड़ेगा। जैसे कि टैनिन के लिए अलग है, उसके बाद अल्कोलॉइड के लिए अलग लगाना है, स्टीरॉइड के लिए अलग लगाना है, वैसे HPTLC के लिए नहीं है। HPTLC के लिए यू कैन all the sample, you can all the band can measure in the same plate only। ठीक है, so do you understand the TLC and HPTLC? So we will move for the next technique which is we are using in chromatography। Definitely techniques क्या रहेंगे? You can imagine, you can guess that is HPLC। So HPLC is increasingly used to analyze almost all the compound in the herbal medicines for identification, adulteration, percentage assay, purity of phytochemicals, etc etc। ठीक है, most probably we are using the reverse phase column chromatography for our most popular column analysis। ठीक है, it is the analytical separation for herbal medicines। Photodiode array detector are used to provide a complete spectrum of each separated compound for further identification। ठीक है, रिवर्स फेज की यूज करते हैं बिकॉज मैक्सिमम जो प्लांट कंपाउंड होते हैं वो पोलर इन नेचर होते हैं, तो डेफिनेटली वी आर यूजिंग द रिवर्स फेज कॉलम क्रोमेटोग्राफी। नॉट ओनली हर्बल, मैक्सिमम एनालिसिस के लिए HPLC में रिवर्स फेज एनालिसिस कॉलम यूज होते हैं। हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज फोटो डायोड अरे डिटेक्टर, दैट इज अ PDA डिटेक्टर। व्हाई प्रोमिनेंटली वी आर यूजिंग द PDA डिटेक्टर इन हर्बल एनालिसिस? बिकॉज हर्बल एनालिसिस के अंदर बहुत सारे बैंड्स होते हैं, राइट? सो सारे कंपाउंड एक ही वेवलेंथ पे एब्जॉर्बेंस नहीं देते। PDA में क्या होता है, इट इज द फंक्शनल, मतलब उसका प्रिंसिपल इज सेम एज यूर UV डिटेक्टर, बट इन द PDA वी कैन एनालाइज द सैंपल मोर देन सिंगल वेवलेंथ। जैसे कि HPLC में अगर UV होते हैं, जैसे अपने पास UV डिटेक्टर है इन आवर लैब, सो वी कैन सिलेक्ट द सिंगल वेवलेंथ, नॉट मोर देन वन वेवलेंथ। ठीक है, इवन इन UV ऑल्सो वी कैन परफॉर्म इन सिंगल वेवलेंथ। वैसे नहीं, PDA डिटेक्टर में क्या होता है, यू कैन एनालाइज द सैंपल एट अ टाइम मोर देन वन वेवलेंथ। मतलब 260 पे भी कर सकते हैं, 366 पे भी कर सकते हैं, 275 पे भी एट अ टाइम कर सकते हैं। तो अलग अलग, बिकॉज जो भी तुम लोग के कंपाउंड होते हैं वो अलग अलग कलर्स के होते हैं, तो इजी जाता है कि हर एक कंपाउंड का हर एक वेवलेंथ के ऊपर कितना एब्जॉर्प्शन मिल रहा है, इसके हिसाब से डिफरेंट कंपाउंड वी कैन फाइंड आउट इन सिंगल ऐसे। इनफैक्ट ये आल्सो यूज फॉर द प्यूरिटी, फॉर चेकिंग द प्यूरिटी, क्योंकि अगर एक कोई कंपाउंड एकदम प्योर फॉर्म में है तो वो सिंगल वेवलेंथ पे ही तुम लोग का मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस देता है। अगर उसके अंदर अडल्ट्रेशन है तो मतलब कुछ और कंपाउंड प्रेजेंट रहेगा, अगर कुछ और कंपाउंड प्रेजेंट रहेगा तो उसका लैम्बडा मैक्स डेफिनेटली कुछ और रहेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग को लगता है, जैसे कि सपोज सिंपल एग्जांपल ले लें, ब्लैक पेपर के अंदर अगर अडल्ट्रेशन है तो अडल्ट्रेशन किसका होता है, पपाया सीड का। तो सबसे पहले फाइंड आउट करो कि पपाया के सीड में ऐसे कौन सा पर्टिकुलर डेंस मार्कर पिक है, दैट इज द फाइटोकेमिकल्स है, और उसका लैम्बडा मैक्स क्या है। ठीक है, एंड नेक्स्ट दैट इज लैम्बडा मैक्स ऑफ योर ब्लैक पेपर। तो अगर दोनों लैम्बडा मैक्स में जब तुम लोग सैंपल रन करोगे, अगर तुम्हारा सैंपल प्योर फॉर्म में है तो वो सिर्फ जो लैम्बडा मैक्स तुम्हारे ब्लैक पेपर का है उसी के ऊपर पीक का एब्जॉर्बेंस देगा, दूसरे वेवलेंथ पे उसका कुछ भी एब्जॉर्बेंस नहीं देगा।
सपोज उसके अंदर पपाया के सीड्स के अडल्ट्रेशन हो चुका है, तो डेफिनेटली वो जो सेकेंड लैम्बडा मैक्स है वो स्पेसिफिकली फॉर पपाया के सीड्स के लिए, उसके अंदर भी वो एक्स्ट्रा पीक्स देगा, जिससे हम लोग को अडल्ट्रेशन है या नहीं पता चलेगा. दैट इज द प्यूरिटी और चेकिंग द percentage assay of the phytochemical analysis. ठीक है. However, it is important to optimize and standardize the condition for separation, like different composition of mobile phase, their pH adjustment, control of pump pressure, filtration of the sample. So these are the few term. ये मैंने few term यहाँ पे डाले to understand कि exactly HPLC पे हम लोग analysis करते हैं. So what is the methodology for the HPLC एनालिसिस. ठीक है. तो स्लाइड में मैंने इसलिए डाला बिकॉज तुम लोग के पास अभी इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टेक एनी, बिकॉज अभी तुम लोग रिसेंटली ना तो अपने लैब में जाते हो या फिर कोई मैक्सिमम रेफरेंस बुक तुम्हारे पास नहीं रहेगी. आई होप यू आर नो दैट कि अवर कॉलेज लाइब्रेरी इज ओपन टू एक्सेस ऑन ऑनलाइन, लेकिन अपने कॉलेज के लाइब्रेरी में मैक्सिमम मतलब एएसयू या फिर ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर बुक्स बहुत कम है. तो रेफरेंस के लिए तुम लोग को डेफिनेटली कुछ मटेरियल रहेगा, इसलिए स्लाइड में मैंने थोड़ा डीपली डाला था कि यू कैन रीड द स्लाइड एंड यू कैन इजीली अंडरस्टैंड. सो एक्स्ट्रा मटेरियल ढूंढने की ज्यादा जरूरत ना पड़े. ठीक है. So we will move for the next slide. I hope you understand the HPLC, how HPLC application in your ASU standardization. Next is your gas chromatography. So many plant material contain the chemical oils and fatty acids which are most often analyzed by the gas chromatography. Definitely, gas chromatography is the best technique for your volatile oil and fatty acid analysis. So, since it is offered the highly sensitive, it can be used for separation of closely related complex mixture of volatile compounds into the individual component. ठीक है. जैसे कि सपोज एग्जांपल देना है तो आई कैन गिव द एग्जांपल ऑफ, ठीक है, लवंग. ठीक है. लवंग के अंदर जो ऑयल होता है उसके अंदर जनरली 3 ऑयल के कॉम्बिनेशंस होते हैं. ठीक है. मतलब 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जितना एज पर माई नॉलेज आई नो द 3 प्रोमिनेंटली उसके अंदर ऑयल होते हैं. जो जैसे कि हमारे मतलब टूथ में अगर दर्द होता है, टूथ एच या फिर टूथ पेन होता है, सो जनरली हम लोग लवंग को टूथ के नीचे रखते हैं, बिकॉज लवंग का जो ऑयल होते हैं उसके अंदर देयर इज वन स्पेसिफिक काइंड ऑफ ऑयल प्रेजेंट इन लवंग विच इज वेरी यूजफुल टू ट्रीट दैट पर्टिकुलर पेन. ठीक है. सो दिस इज उसके अंदर जो ऑयल होते हैं ना, उसका जो केमिकल नेचर हो ऑलमोस्ट सिमिलर, हार्डली सिंगल सिंगल कंपाउंड उसके अंदर कुछ तो डिफरेंट रहेंगे, जैसे कि एडिशनल OH ग्रुप है या फिर एडिशनल CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, ऐसे आई जस्ट गिविंग द एग्जांपल. सो उसको सेपरेट आउट, मतलब अलग अलग चीज में सेपरेट करना काफी डिफिकल्ट होता है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी वी कैन इजीली फाइंड आउट द क्लोजली रिलेटेड कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ योर वोलाटाइल ऑयल, मतलब सिंगल ऑयल में से और ऑयल एक्सट्रैक्ट करना. ठीक है. दैट इज वी कैन इजीली परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी. Then composition of relative concentration of the phytochemical in volatile oil and characterization of the particular plant. वो particular plant की characterization we can easily find out. Then GC fingerprinting is used to identify and authenticate the plant material, and presence of impurity in the volatile oil can be easily detected. If you know the volatile oils are highly demanded in your commercial oil production. अभी अगर देखा जाए तो maximum people are research के लिए अगर ढूंढते तो they are extracting maximum oil from the plant. ठीक है. बिकॉज अगर देखा जाए तो अभी सिनेरियो बहुत चेंज हो चुका है बिकॉज ऑफ दिस हर्बल फार्माकोपिया या फिर जो भी हम लोग क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह यूज करते हैं इन योर ट्रेडिशनल मेडिसिन का डिमांड अभी एज कर मॉडर्न मेडिसिन से काफी हाई हो चुका है, बिकॉज उसके अंदर रिस्क फैक्टर बहुत कम है या फिर हार्म करने वाले केमिकल्स बहुत कम है. सो एंड ट्रीटमेंट काफी इजीली जाता है. सो मैक्सिमम पीपल आर मूविंग टुवर्ड द हर्बल मेडिसिन. ठीक है. सो उसके लिए अभी बहुत से लोग वोलाटाइल ऑयल्स या फिर बहुत सारे फ्रैगनेंट कंपाउंड प्लांट में से ओरिजिनली एक्सट्रैक्ट करते हैं. जैसे कि अगर तुम लोग को पता होगा कि आयोडेक्स जो इसके अंदर एक पर्टिकुलर फ्रैगनेंट्स होने वाला ऑयल होता है, that oil we can easily collect from the, it is a plant extract. ठीक है. it is also the herbal medicine, the oil is a plant extract. so उस ऑयल से क्या होता है, जस्ट ऑयल का स्मेल से भी तुम लोग को काफी फ्रेशनेस लगता है. सेम जो सर्दी होती है तो एक ट्यूब्स आते हैं जिसके अंदर तुम लोग को क्या बोलते हो, नीलगिरी का ऑयल होता है. ठीक है. सो दीज आर द वोलाटाइल ऑयल्स विच इज काफी हेल्पफुल, मतलब दीज आर मैक्सिमली हेल्पफुल फॉर नंबर ऑफ ट्रीटमेंट.
लेकिन अभी क्या हो रहा है, डेफिनेटली उसके अंदर भी अडल्ट्रेशन हो रहा है काफी सारा, बिकॉज द ऑयल्स आर इन हाईली डिमांड एंड वो इजीली अवेलेबल नहीं होते, उसको एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसीजर बहुत डिफिकल्ट होता है एंड वेरी लेस अमाउंट में वो एक्सट्रैक्ट होते हैं. सो डेफिनेटली अडल्ट्रेशन करो, 5 ग्राम 1 ml भी कोई ऑल ऑयल भी तुम लोग मिक्स करते हो तो फिर वो काफी तुम लोग को क्या बोलते हैं, मतलब प्रोडक्शन के लिए काफी अडल्ट्रेशन हो गए, उसके अंदर तुम लोग बहुत सारा मनी कमा सकते हो. तो डेफिनेटली अगर उसके अंदर ऑयल में कुछ अडल्ट्रेशन हो रहा है, सो यू कैन इजीली फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ जीसी फिंगरप्रिंटिंग. सो वी विल मूव फॉर द नेक्स्ट स्लाइड. ठीक है. हाइपरनेटेड टेक्निक्स ऑफ एलसीएमएस एंड जीसीएमएस. अभी इसके अंदर क्या है, जस्ट वी आर यूजिंग द डिटेक्टर एज अ मास स्पेक्ट्रोमेट्री फॉर योर फर्दर एडवांस एनालिसिस. That is a chromatographic separation system like LC and GC are combined online with the mass spectrometric detector that provide the advantage of both chromatography as a separation method and mass spectrometry as an identification component. ठीक है. Mass spectrometry is prominently used for identification of the compound based on their mass to charge ratio. कोई भी unknown compound है तो उसका chemical structure और chemical formula और molecular formula we can easily detect with the help of the mass spectrometry. So GC से क्या होता है, compound separate होते हैं phytochemicals, and mass spectrometry से अगर कोई unknown phytochemicals है या फिर उसका अलग से, हम लोग ने फर्स्ट कुछ पीपीटी में देखा था ना, स्ट्रक्चर एलिसिडेशन करना है, उसके लिए अलग से कोई टेक्निक करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली सेपरेट हुआ जीसी से, and mass spectrometry say we can easily find out their structural elucidation. So it is a very fast technique. So mass spectrometry is the most important method to use the structural elucidation and identification of the separated unknown phytochemical. कोई न्यू phytochemical है जो कोई न्यू प्लांट में से तुम लोग ने एक्सट्रैक्ट करो. सी, हर्बल मेडिसिन में रिसर्च के लिए बहुत साइड ओपन होते हैं, बिकॉज हर एक प्लांट यू नेवर नो कि कौन सा प्लांट कहाँ पे यूज हो सकता है. जैसे कि सिंपल है, हम लोग बोलते हैं कि हल्दी कफ ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, सेम वे हल्दी तुम्हारे फेस ट्रीटमेंट के लिए भी यूज होता है, स्किन ट्रीटमेंट के लिए भी हो सकता है. उसके अंदर एंटी फंगल एक्टिविटी, एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी भी है. ठीक है. सो ऐसे हर एक क्योंकि प्लांट के अंदर इतने सारे फाइटोकेमिकल प्रेजेंट है, नॉट नेसेसरी कि 100% सारे फाइटोकेमिकल के यूजेस हम लोग को पता है. सो इट इज अ लार्ज, बहुत सारे फाइटोकेमिकल से एग्जैक्टली कोई न्यू फाइटोकेमिकल फाइंड आउट करना एंड उसका ट्रेडिशनल मेडिसिन में कैसे यूज करना है, उसके लिए बहुत सारे रिसर्च प्रोडक्ट अभी तुम लोग के लिए ओपन है. सो यू कैन इजीली फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ दिस मास स्पेक्ट्रोमेट्री की एग्जैक्टली उसका कौन सा न्यू फाइटोकेमिकल हम लोग को पता चला. सो वी विल मूव फॉर द नेक्स्ट स्लाइड. ठीक है. सो दीज आर द, अभी हम लोग ने क्या देखा, क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक स्टडी किए. लेट्स मूव टू द नॉन क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक. कौन से नॉन क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स है जो वी कैन यूज फॉर योर फर्दर एनालिसिस. So next that is your gravimetric analysis. So gravimetric analysis सबको पता है क्योंकि सेकेंड ईयर तक सब लोग ने केमिस्ट्री किया. इट इज नथिंग बट द क्रूसिबल के अंदर तुम लोग को सैंपल लेके उसको बर्न करना होता है. सो दैट इज नथिंग बट योर ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस. सो इट इज यूज्ड टू डिटर्मिनेशन ऑफ मोस्ट प्रोमिनेंटली फॉर एश वैल्यू, दैट इज टोटल एश, एसिड इनसोल्युबल, एसिड ब्ला ब्ला जो हम लोग ने ऑलरेडी देखा है, सोल्युबल, इनसोल्युबल वाटर वगैरह, ये सारे एश जो आते हैं वो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में आते हैं. मैंने यहाँ पे एश का प्रोमिनेंटली डाला है बिकॉज मेजरली ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में, हर्बल एनालिसिस के लिए जो हम लोग करते हैं वो एश होता है. एश वैल्यू करना हर्बल मेडिसिन में कंपलसरी होता है बिकॉज प्लांट के अंदर क्रूड फाइबर्स होते हैं जो अपने बॉडी में इजीली डाइजेस्ट नहीं होते हैं. इट मे बी द हार्मफुल और योर बॉडी. ठीक है. ओके. सो विच इज फर्दर ऑल्सो हेल्प फॉर हेवी मेटल एनालिसिस. ठीक है. अभी हेवी मेटल एनालिसिस के लिए बहुत सारे स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड अवेलेबल है, जैसे कि एटॉमिक ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर आईसीपीएमएस ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे टेक्निक्स है. लेकिन इससे पहले जस्ट ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस यूज होता था, जिसमें एक कलर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता था. जैसे कि एक स्टैंडर्ड बनाना है सैंपल का, उसका एक प्रोसीजर होता था. प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ 100 ppm ऑफ लीड, मर्क्यूरिक और कैडमियम, उसके स्टैंडर्ड प्रिपेयर करते थे हम लोग 100 ppm के. सेम वे सैंपल का एक डाइल्यूशन करके उसका एक पर्टिकुलर रेशियो में सैंपल प्रिपेयर करना होता था. एंड दोनों के कलर देखते थे कि अगर सैंपल का कलर स्टैंडर्ड के कलर से डार्क है तो वो 100 ppm से उसका कॉन्सेंट्रेशन हाई है, तो सैंपल इज रिजेक्टेड. अगर कलर लाइट है तो सैंपल इज पास फॉर द
पर्टिकुलर एनालिसिस। उसका एक लिमिट होता था कि स्टैंडर्ड 100 पीपीएम का या फिर 10 पीपीएम का स्टैंडर्ड प्रिपेयर करते थे, एंड उसके कलर के हिसाब से स्टैंडर्ड का सैंपल का कलर मैच करते थे। प्रीवियस जमाने में ऐसे हेवी मेटल का एनालिसिस होता था, तो उसके लिए कंपलसरी ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस होता था। इवन आईसीपीएमएस और एएस के लिए भी अगर तुम लोग को सैंपल यूज करना है, तो सबसे पहले तुम लोग को सैंपल को बर्न करके उसको एश में कन्वर्ट करना होता है। दैट इज you have to convert your organic sample into the inorganic content, then only you can go for the further analysis. So gravimetric analysis is basic for preparation of your ash. ठीक है? So next, that is your titrimetric analysis. Before I start with the titrimetric analysis, I think all the people are joined for that. There are 20 participants. Sorry. So I just want to clear the doubts for the last session, because anybody is having any doubts, please you can ask right now. Dhanashri or Kajal, you raise your hand in last lecture and I couldn't have time to clear your doubts. So if you are present for today's lecture, please ask your doubt. Dhanashri, are you there? Yes, you can unmute yourself and you can ask your doubt. येस मॅम. Yeah. मॅम ऍक्च्युली तुम्ही क्लिनिकल ट्रायलचं सांगितलेलं ना की हम्म. आयुर्वेदामध्ये क्लिनिकल ट्रायल होतात. हम्म. तर मग आपण असं ऐकतो की आयुर्वेदाचं इफेक्ट दिसायला खूप टाइम लागतो. Exactly. तर मग त्याचे क्लिनिकल ट्रायल पण क्लिनिकल भरपूर ट्रायल्स कसे होना, डेफिनेटली यू आर वेरी गुड क्वेश्चन धनश्री, कि एग्जैक्टली आयुर्वेदा में हम लोग क्लिनिकल ट्रायल्स कैसे करेंगे. नॉट ओनली दैट, इन क्लिनिकल ट्रायल्स सी आयुर्वेदा का ट्रीटमेंट का जो मेथोडोलॉजी वो भी अलग है. इन द सेंस मॉडर्न मेडिसिन में जो ट्रीटमेंट होता है उसमें हम लोग को कैसे करते हैं, देयर आर ओनली 3 रूट्स. ठीक है, आइदर वी आर टेकिंग आईवी दैट इज इंट्राविनस, और माउथ मतलब दैट इज ओरल, और एप्लीकेशन ऑन यूर स्किन. ठीक है, मेजरली ये 3 ही चीजें होते हैं जहां से तुम लोग को जनरली मेडिसिन होता है. अदर भी रूट से, लेकिन दे आर, एंड उसके बाद कैसे होता है कि विद इन 24 आवर्स के बाद तुम लोग का रिजल्ट दिखता है. आयुर्वेदा में तुम लोग का सैंपल का एनालिसिस वैसे नहीं होता है. जस्ट 1 सेकेंड, आई जस्ट हैविंग द डिस्क चार्जिंग, आई जस्ट अटैच चार्जर. ओके. सो आयुर्वेदा के अंदर तुम लोग का जो ट्रीटमेंट करने का प्रोसीजर है, इट इज काफी डिफरेंट. ठीक है, एज यू नो हम लोग ने पंचकर्मा ट्रीटमेंट लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा था कि उसके अंदर पहले पूर्व कर्मा होता है, देन प्रधान कर्मा होता है, देन पाश्चात्य कर्मा, एंड उसके प्रोसीजर के मेथड्स भी अलग अलग है. सो हाउ एग्जैक्टली वी विल डील द क्लिनिकल ट्रायल्स इन योर एएसयू. ठीक है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बट इट इज पॉसिबल. ठीक है, उसके अंदर भी 4 फेजेस होते हैं धनश्री. एंड आफ्टर द मतलब ये जो अपना सेकंड टॉपिक चल रहा है, दैट इज अ बायोटिकल टूल्स इन ASU. उसके बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो सेम है, दैट इज हाउ वी परफॉर्म द क्लिनिकल ट्रायल्स इन ASU सिस्टम. So I think you will get the detailed information in for your question in that particular lectures. So we will first discuss in that lecture. Still, if you have any doubts, we can continue in that lecture. ठीक है? ओके मॅम. Okay, then Kajal, you have any doubt? You also raise in your hand in last lecture. Kajal is present for today's lecture? No? Okay, so apart from this, anybody else is having any doubt? If no, then so anybody can just write no, so I can continue for the next slide. Okay, so at least 1 minute में at least हम लोग ये next slide so continue करते. It is a titrimetric analysis because इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा बताने जैसा नहीं है. So we will at least continue complete this point. So sorry, it is a gravimetric के बाद next topic, that is a thermogravimetric. ठीक है, I think the minute is less than 1 minute, so better I not start the slide. We will stop here and we will meet the continue the slide in the next lecture. So thank you so much for the listening. I hope you are understood the today's lecture. Today's lecture is very simple, it is not that much difficult. Still, I hope you have enjoyed the lectures, and we will continue for the next lecture tomorrow. Okay, thank you so much. Good day. Bye.